Hello everyone, this is Rotaract Dhruv Desai. Today welcoming you all for an interview with Dr. Pushkar Gulgari, Ayurvedacharya, psychosomatic specialist. Today we are taking up the topic anxiety. Going straight up with the first question, what is anxiety? What are the physical symptoms of anxiety? Yes, so thank you so much, Dhruv, for such a wonderful introduction. So, coming to your question, what is anxiety? So, anxiety is a confused state of mind in which that particular individual is not able to perform his regular activity in a proper manner, and sometimes with a negative state of mind. And coming to your second question, what is the physical symptoms of anxiety? So, before coming to the physical symptoms, I would like to explain what actually anxiety is. So, anxiety is a feeling of fear, dread, or restlessness. For example, a strict teacher handing out your report cards. The feeling you have when you are getting your report card from a strict teacher is anxiety. The feeling you have when you're walking alone in night on an empty street, that is the feeling of fear is known as anxiety. And the physical symptoms, that is rapid heartbeat or pounding. So continuous rapid heartbeat, that is a symptom of anxiety. Second is unexplained aches or pains. Third is dizziness. Fourth is sweating or getting a cold feeling. Next is deflection in pulse rate. That is, sometimes the pulse rate goes very high, sometimes the pulse rate goes very low. Next is polyuria. That is frequent urination. And then is dilation of pupils. That is dilation of the eyeballs. So, how do you know if you have an anxiety disorder or how do you face it and how do we get to know if we actually have it? Yes. So, some of the major symptoms of having an anxiety disorder is blank stage of mind while doing some tasks. Second is more time consumption in memorizing the task at hand or memorizing something which is to be memorized. Next is heartbeats deflection or the blood pressure deflection, which means in scientific way, blood pressure and heartbeats are inversely proportional. That is, when the pulse rate is high, the BP is low, and when the pulse rate is low, the BP is high. So this is one of the major symptoms. Okay. Next is unable to memorize the things quickly or as compared to earlier. Means if you are able to memorize things in 5 minutes as of now, and you were able to memorize the things in 3 minutes in the earlier part of your life. So that is a symptom of anxiety. Short temperedness, that is getting angry on small things, petty things at a drop of a hat. So that is one symptom. And then is unwanted discussion on irrelevant topic. So Dhruv, I wanted to ask you, just as I've mentioned some of the symptoms, have you ever felt any of these symptoms at any certain point of time? Yes, actually, doctor. So, when I was actually in some meeting or something, I used to feel like that something is going through my mind. What am I about to speak? I usually speak it in my mind. So, is this normal or is this a part of anxiety? So, it is normal, and anxiety is actually normal. Having nervousness is good, but having over nervousness is bad, because that over nervousness or that excess nervousness tends to affect your performance. So yes, these are some of the anxiety symptoms for anxiety disorders. Okay. So doctor, what are the symptoms what body shows actually, like the term physiological actions during anxiety? So basically, physiological action is the action that happens in the body when the anxiety hits the body or when the anxiety is starting to creep in. So basically, our body has a nervous system. So this nervous system is known as central nervous system, and this central nervous system is responsible for a fight or flight response. In the central nervous system, we have an organ known as hypothalamus in the brain. This hypothalamus is the king of the endocrine gland system, and beneath this hypothalamus is the pituitary gland, who works as a minister, which means who gets the work done, who sends the signal for all the glands to secrete or to inhibit the secretions. Yes. जब स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तब हमारे जो ऑर्गन्स है जिसको सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत है एट दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन, तो उधर सबसे ज्यादा ब्लड पहुंच जाता है. सो ध्रुव, आपकी लाइफ में कभी ऐसे कोई सिचुएशन आया है जहां एंजाइटी आपको हिट किया हो या फिर क्रीप इन किया हो? हाँ, एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था where I was in a situation, a dog was there in the free road and I was scared to do what I was thinking कि क्या करूँ, तो my mind just strike कि I should run away. So is that a part of anxiety kind of thing? Yes, it is a part of anxiety. जैसे कि आपके माइंड ने कहा या फिर आपके ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि कुत्ता पीछे पड़ने वाला है, तू भाग. So ये जो
पीछे पड़ने वाला है तू भाग, ये वो टाइम है जहां स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो गए हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं और ब्रेन ने बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितना ब्लड है उसमें से सबसे ज्यादा से ज्यादा ब्लड लेग्स को जाना चाहिए, बिकॉज लेग्स को सबसे ज्यादा भी काम करना है जो है भागने का। सो ये जो साइकिल है कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने के बाद ब्लड सबसे ज्यादा उस ऑर्गन तक पहुंचना, इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसके बाद जब ध्रुव वापस आपकी तरफ आता हूं, तो फिर एक पॉइंट जहां होगा कि कुत्ता आपके पीछे भागना बंद कर दिया है, तो तब आपकी फीलिंग क्या थी? एक रिलीफ। यस, सो ये जो रिलीफ था कि अभी कुत्ता पीछे नहीं भाग रहा है, सो दिस वाज द पॉइंट वेयर द स्ट्रेस हार्मोन्स हैड बीन रीअब्सॉर्ब्ड। वो अभी वो ब्लड में है नहीं, जिसकी वजह से अभी आपके हार्ट बीट्स भी नॉर्मल हो गए होंगे। और उसके साथ साथ जो ब्लड जो आया था लेग्स में फॉर द मोर वर्क, वो भी ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल फ्लो पे आ गया था। यस, सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन स्ट्रेस हिट्स या फिर एंजाइटी हिट्स। सो एक मेरे को एक डाउट था। सो आई हैव अस्थमा, सो मेरा फास्ट पंपिंग जो होता है दैट इज नॉर्मल, तो उसमें फास्ट पंपिंग जो मेरा अस्थमा का होता है एंड द वन विच ट्रिगर्स ड्यूरिंग दैट एंजाइटी, डिफरेंस उसमें कुछ होता है कि इट्स द सेम? नो, इट एक्चुअली उसमें डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस ये है कि जब आपका अस्थमा हिट करता है, सो इट माइट बी ड्यू टू सम एलर्जन और इट माइट बी ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, क्लाउडी वेदर हो गया। क्लाउडी वेदर में कभी कभी एलर्जेंस थोड़े नीचे एटमॉस्फेयर में थोड़े नीचे होते हैं, उसकी वजह से अगर आपने वो एलर्जन इनहेल कर दिया तो आपको ट्रिगर हो सकता है। हाँ, एंजाइटी कैन ट्रिगर अस्थमा, बिकॉज जैसे कि कहा कि स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अगर हार्ट बीट ज्यादा हो रहा है, अगर हार्ट ब्लड पंप ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब क्या कि उसको रेस्पिरेशन भी उतना करना पड़ेगा, उतना फास्ट रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। सो इट कैन बी अ ट्रिगर फैक्टर, इट कैन बी नॉट। सो डिपेंड करता है कि एक्चुअल वो अस्थमा का जो ये आ रहा है, अटैक आ रहा है, उसके पीछे का ट्रिगर फैक्टर क्या है। अगर एंजाइटी है तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन अलग है, अगर जो आपका नॉर्मल एलर्जन है तो उसका फिजियोलॉजिकल फैक्टर अलग है। So doctor, who is at the risk? Who is at the stake of the point? क्योंकि if anxiety is happening, if the triggers is going on, who is at the stake of the point? Yes. So a mix of genetic and environmental factors can raise the person's risk for developing an anxiety disorder. So ये higher risk कब है? So higher risk तब है जब कोई certain personality traits like shyness या फिर behavior inhibition, मतलब जल्दी से लोगों के साथ मिक्स न होना, या फिर बहुत बड़ा ग्रुप देखने के बाद उनसे कैसे इंटरेक्ट करें, ये जो सवाल आता है, और उनसे इंटरेक्शन करना है। सो ये जो ट्रिगर फैक्टर है, ये जो रिस्क है, दिस इज व्हाट वी कैन से पॉइंट इन द रिस्क फैक्टर। सेकंड इज a person having a stressful or a traumatic childhood, or some of the other traumas which has happened in his past. Next is family history of anxiety, genetic history of anxiety. Then is certain physical conditions like thyroid problems or heart arrhythmias. ये जो certain physical body conditions है, उसके वजह से anxiety hit हो सकता है. Next is specifically anxiety disorder जो है, ये है women में सबसे ज्यादा पाए गए हैं. That is because due to hormonal changes in their menstrual cycle. Yes, so these are the people who are at risk for these anxiety disorders. So taking that question ahead, what are the illnesses, what are the effects which is happening to the body? Okay. So due to anxiety, many illnesses or many diseases can occur, because as we all know, anxiety is caused when mind is getting disturbed or when the brain is getting disturbed. एंड आयुर्वेदा में कहा गया है कि जो माइंड है, जो मन है, उसका स्थान ब्रेन में है. मतलब मन के दो स्थान बताए गए हैं, एक ब्रेन और एक हार्ट. सो एक जो लोकेशन बताया गया है ब्रेन, विच इज सिचुएटेड ओवर हियर. सो अगर माइंड अफेक्ट होता है, अगर मन अफेक्ट होता है, तो बट ऑब्वियसली बॉडी अफेक्ट होने ही वाला है. सो अगर बॉडी अफेक्ट हो रहा है तो उसमें अलग अलग डिसीजेस दिखेंगे, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो गया. सो दैट कैन बी हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म. इट कैन आल्सो लीड टू हाइपरटेंशन, इट कैन आल्सो लीड टू डायबिटीज, इट कैन आल्सो लीड टू ओबेसिटी. बिकॉज बहुत सारी रिसर्चेस में से पाया गया है कि व्हेन द एंजाइटी हिट्स और व्हेन द स्ट्रेस हिट्स, जो पर्सन जिसको हिट किया है, ही स्टार्ट्स टू ओवर ईट.
जब वो ओवर ईट करता है तो बट ऑब्वियसली उसका जो डाइजेशन है वो अफेक्ट हो रहा है। अगर डाइजेशन अफेक्ट हो रहा है तो वो जो खा रहा है वो बट ऑब्वियसली फैट में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है और वो बॉडी के हर एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है। सो इसकी वजह से ओबेसिटी दिख रहा है पेशेंट में। सो अगर एंजाइटी हिट हो रहा है तो एंजाइटी कैन कॉज मल्टीपल डिसीजेस बिकॉज if mind is affecting if mind is getting affected, so if mind is getting affected then hypothalamus is getting affected। मतलब अगर राजा बिगड़ रहा है तो बट ऑब्वियसली उसकी प्रजा बिगड़ेगी। सो यस, इसलिए अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं व्हेन द एंजाइटी इज गेटिंग हिट। तो मेरे को एक डाउट है कि इज एंजाइटी हिटिंग द मेन स्ट्रीम डिसीजेस, जस्ट बेसिकली डायबिटीज, थायराइड, जो मेन डिसीज आपने बताया, इज इट जस्ट ट्रिगरिंग दैट इश्यूज, और सर्दी, बुखार, खांसी जो चीजें यूजुअली अपन को होती है ड्यू टू सम डस्ट एलर्जीज, द नॉर्मल थिंग्स व्हिच हैपेंस, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब एंजाइटी हिट्स दैट एज वेल कि ओनली द मेन स्ट्रीम? No, anxiety hits all the diseases. Okay. So it can be cough, it can be your cold, it can be your fever। मतलब अगर anxiety hit हो रहा है, just a short example, सब लोग ने वापस में वाइवा का एग्जांपल लूंगा। आपने वाइवा दी है, Yes. या आपके साथ बहुत से जन रहेंगे जिन्होंने वाइवा दी है। ऐसा कोई बच्चा रहेगा या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट रहेगा जो पहले दिन वाइवा के डर की वजह से उसको बुखार आया रहेगा। Happened. यस, सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एंजाइटी हिट कर रहा है एंड फीवर इज अ गुड इंडिकेशन कि अगर एंजाइटी हिट हो रहा है या फिर कोई भी हिट हो रहा है तो फीवर क्या है? फीवर बताता है बॉडी में से कि अगर हीट बढ़ रही है मतलब किधर ना किधर तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो गए हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज उसका जो सिम्टम दिख रहा है कि अभी बॉडी की हीट बढ़ गई है, मतलब ये इस और पीछे कोई कॉज फैक्टर नहीं है, जैसे कुछ उसने उल्टा सीधा खा लिया है या फिर उसको पहले कुछ सर्दी बुखार कुछ था, मतलब सर्दी या फिर कुछ कफ वगैरह कुछ था, या फिर जैसे कि फिलहाल के कंडीशन में कोविड है, सो कहीं बाहर गया है वो, तो ये फैक्टर्स नहीं है, बट फिर भी उसको बुखार क्यों आ रहा है? उसको बुखार आ रहा है बिकॉज हिज माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड, बिकॉज अगले दिन वाइवा है और उसका शायद से प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, या फिर उसको एंजाइटी है कि मैं आंसर बराबर से दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। उसको शायद से एग्जामिनर का डर लग रहा है कि एग्जामिनर कैसा आएगा, स्ट्रिक्ट आएगा, लीनियंट रहेगा, क्या वो मुझे ऐसे सवाल पूछेगा। ही इज ओवर थिंकिंग कि एग्जैक्टली आगे कैसा होने वाला है, इसकी वजह से उसको बुखार आ रहा है। सो इट डज नॉट मैटर कि वो मेन स्ट्रीम डिसीजेस हिट कर रहा है या फिर छोटे मोटे डिसीजेस हिट कर रहा है, वो पूरे बॉडी को हिट करता है एंड इट इज द पर्सन्स बॉडी, वो किस हिसाब से उसको पोर्ट्रे कर रहा है फिर प्रोजेक्ट कर रहा है। सो डिसीजेस हो गए, एंजाइटी डिसऑर्डर सब हो गया। कैन एंजाइटी बी प्रिवेंटेड बाय एनी चांस, और व्हाट इज द परफेक्ट टाइमिंग टू go ahead and confront a doctor or the professional for anxiety? Okay. So yes, anxiety can be prevented, और ये बहुत लोगों को लगता है कि एंजाइटी प्रिवेंट नहीं किया जाता, क्या नहीं जा सकता। एक बार एंजाइटी के लग गई तो उसकी गोलियां लेते रहो तो जिंदगी और मरने तक सिर्फ एंजाइटी की गोलियां लेनी है, ऐसा नहीं है। एंजाइटी प्रिवेंट किया जा सकता है, और जो एक्सेसिव रिएक्शन आ रहा है एंजाइटी को वो तो 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड थोड़ा सा एंजाइटी इज नेचुरल और वो रहना चाहिए, बिकॉज अगर एंजाइटी नहीं रहेगा तो जो एक्चुअल काम करने में जो परफॉर्मेंस जो इंक्रीज करता है वो एंजाइटी ही होता है। मतलब जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है दैट इज ड्यू टू एंजाइटी, बिकॉज ये काम मुझे अच्छा करना है, ये जो होता है, ये जो माइंड का कहना होता है, तो वो एंजाइटी की वजह से ही होता है। एंड यस, एंजाइटी कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हो गया, कुछ सर्टन प्रोसीजर्स हो गए जैसे कि पंचकर्मा हो गया, कुछ माइंड एक्सरसाइजेस हो गए, कुछ मेडिटेशन हो गया। इस हिसाब से हम लोग एंजाइटी प्रिवेंट कर सकते हैं। And the right time to seek the professional help is when anxiety starts interfering with your daily life। मतलब कुछ पढ़ाई कर रहे हो आप, और आप जो काम 10 मिनट या फिर जो आपका पैराग्राफ है या फिर जो आपका पढ़ाई है वो आप पहले 1 घंटे में खत्म करते थे, अभी आपको उसके लिए 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। अगर 2 से 3 घंटे लग रहे हैं whereas जो आपको पहले 1 घंटा लग रहा था, मतलब किधर ना किधर तो आपको उसका प्रेशर आ रहा है, आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है किधर ना किधर तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अगर आपको ये सिम्टम्स लग रहा है कि नहीं मेरा माइंड ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एज मच, या फिर मैं उस काम को जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये किधर ना किधर तो आपको एंजाइटी आपके रेगुलर वर्क में इंटरफेयर कर रही है और आपका परफॉर्मेंस हिट कर रहा है, हिट ले रहा है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू सीक काउंसलिंग और सीक अ प्रोफेशनल्स हेल्प। So here comes the part of Ayurveda. You are the Ayurveda Acharya. How can Ayurveda help in treating anxiety for the matter? Yes. So Ayurveda is a very vast science, मतलब बहुत सालों से है, और उसमें पहले ही
इसके डिसीजेस के बारे में लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि एक एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, एक जो जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, ऐसे दो एनर्जीज रहती है। सो अगर पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा है तो बट ऑब्वियसली काम अच्छी तरीके से होगा, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो काम थोड़ा सा कम होगा या फिर वो शायद से होगा भी नहीं। सो ये जो है, जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, सो जो हमारा माइंड है दैट इज द एनर्जी, मतलब माइंड इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमारी जो बॉडी है इट इज अ कंडक्टर, मतलब अगर कुछ काम करना है तो वो कंडक्टर के थ्रू ही होगा, माइंड बाहर आके काम नहीं करने वाला। ट्रू। सो ये जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क जो करना है वो बॉडी करने वाला है। और ये कैसा, इसका मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप दिवाली में घर की साफ सफाई होती है, यस, तो कितना कचरा निकलता है? मोर देन द यूजुअल थिंग्स। यस। हर रोज घर का साफ सफाई होता है। हाँ, बट नॉट ऑन दैट फ्रीक्वेंट जितना दिवाली पे यूजुअली होता है। यस, मतलब हम लोग डेली घर हमारा साफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कचरा निकलता है, और जब हम दिवाली पे जब हम लोग साफ सफाई करते हैं तो बहुत सारा कचरा निकलता है। ऐसे क्यों? ऐसा नहीं है कि हम लोग ने वो दिवाली के 10 दिन पहले हम लोग ने आके घर पे आके डंप कर दिया, ऐसा नहीं होता, वो घर पे ही रहता है। जैसे वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स किधर ना किधर जमा हुए रहते हैं, जो हमारे डेली जो हम लोग का बॉडी क्लीनअप होता है, जैसे कि हम लोग का सुबह का एक्सक्रीशन हो गया, यूरिनेशन हो गया, इसमें हमारा बॉडी हर रोज कुछ ना कुछ तो टॉक्सिन्स एक्सपेल करता ही रहता है। बट जब कोई बंदा पंचकर्म करता है या फिर कोई डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो ये डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है, जो हम लोग घर पे दिवाली का साफ सफाई करते हैं वैसे हमारे बॉडी का साफ सफाई होता है, हमारे बॉडी का क्लीनिंग होता है। और जब ये टॉक्सिन्स बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी है, जो कंडक्टर है वो क्लीन हो गया, and then this conductor is free of any toxins, of any obstacles, any blockages to conduct any type of energy। और अगर अच्छा कंडक्टर हो तो एनर्जी भी अच्छी तरीके से पास हो जाएगी। अभी आते हैं बॉडी का तो हो गया, अभी आते हैं माइंड पे। अभी अगर माइंड को अगर पॉजिटिव रखना है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, दैट इज मेडिटेशन हो गया, फिर क्या बोलते हैं अरोमा थेरेपी हो गया, म्यूजिक थेरेपी हो गया, जिसकी वजह से जो एंग्शियस पर्सन है या फिर जो पर्सन है जो एंजाइटी में जो एंजाइटी से सफर कर रहा है, तो उसमें कैसा होता है कि अगर वो एंजाइटी से सफर कर रहा है तो बट ऑब्वियसली उसका किधर ना किधर तो उसका माइंडसेट नेगेटिव हो गया है। अगर माइंडसेट नेगेटिव हो गया है तो उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे होगा? ध्रुव सर, आपको कौन सा स्मेल या फिर कौन सा ये जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, फिर कौन सा म्यूजिक है जो आपको पसंद आता है, जो आप सुन के एकदम काम हो जाते हो, एकदम पॉजिटिव हो जाते हो? समथिंग व्हिच इज सॉफ्ट अकॉस्टिक। यस। सो अगर ये म्यूजिक आपको हर रोज सुनाया जाए ओके, तो आपका माइंड का रिएक्शन कैसे रहेगा? मोर काम, पीस, थोड़ा बेटर वे में काम करना लगेगा, मतलब मोर आप अच्छी तरीके से इन अ पॉजिटिव बेटर हो जाओगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे। फॉर श्योर। और अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आपका बॉडी फ्री ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स और फ्री ऑफ टॉक्सिन्स है, तो क्या आपके हाथ में जो दिया हुआ टास्क है या फिर जो आपको अभी काम करना है वो आप अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म कर पाओगे? मच बेटर। यस। सो दिस इज वेयर आयुर्वेदा कम्स इनटू प्ले कि कंटिन्यू कि कोई ट्रीटमेंट दिया है या फिर कोई म्यूजिक थेरेपी दिया है, कोई अरोमा थेरेपी दिया है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उसको कौन सी चीज पसंद है। हाँ, बट ये सिर्फ हमें डायरेक्टली सिर्फ अरोमा थेरेपी या फिर सिर्फ म्यूजिक सुनना या फिर सिर्फ स्मेल देना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जब तक कंडक्टर क्लीन नहीं है, जब तक कंडक्टर फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तब तक सीधा माइंड पे काम करने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आयुर्वेदा में पहले भी कहा गया है कि पहले बॉडी का डिटॉक्स करो, उसके बाद फिर माइंड पे काम करो। जब तक बॉडी का डिटॉक्स नहीं होगा तब तक माइंड पे जो रिजल्ट चाहिए, जो इफेक्ट्स चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। सो आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि शिरोधारा हो गया। शिरोधारा इन द सेंस जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमस है, जो इधर सिचुएटेड है, बराबर दो आंखों के बीच में, तो उसके ऊपर तेल की धारा छोड़ी जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कि उसको जगाना इन द सेंस उसको एक्टिव करना है या उसको सप्रेस करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द शिरोधारा उसका डिपेंड करता है कि शिरोधारा मूविंग है कि स्टेबल है। अगर पेशेंट, और अभी हम एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंजाइटी में अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है तो हमें उसको शांत करना है, तो इधर स्टेबल शिरोधारा इज एक्सपेक्टेड। इसमें कुछ नहीं, हम लोग तेल की धारा छोड़ते हैं, उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो ओवर एक्साइटेड हो गई है वो शांत हो जाती है। इसके साथ साथ एक नस्य नाम का पंचकर्म है। सो इट इज वन ऑफ द पंचकर्म, मतलब जो 5 कर्म बताए गए उसमें से एक मेन कर्म है। सो उसमें क्या है कि हम लोग नेजल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऑफ मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड घी। इससे क्या होता है
कि आयुर्वेदा में बताया गया है कि जो ब्रेन तक अगर पहुंचना है तो द इजिएस्ट एंड द नियरेस्ट रूट इज नोज। मतलब अगर हम लोग एनाटॉमी देखें हेड का या फिर ब्रेन का, तो नोज और ब्रेन के बीच में सिर्फ एक थिन प्लेट है, दैट प्लेट इज नोन एज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अगर ये प्लेट से कोई भी ऑयल या फिर घी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है जो ब्रेन तक पहुंच जाता है। हम लोग ने जो बीच में कोविड टेस्ट हुआ था, मतलब जो फर्स्ट वेव आई थी, तो उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स थे कि जब कोविड टेस्ट हो रहा था, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था, तब नाक में से कुछ फ्लूइड बाहर आ रहे थे। सो दैट फ्लूइड वाज, और वो क्यों? बिकॉज जोर से जो टेस्ट स्वाब थे वो जोर से नाक में डाले गए थे। जब वो स्वाब जब नोज को हिट किए ऑन द अपर साइड, तब वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट टूट गया। उसकी वजह से जो फ्लूइड आया था दैट वाज नथिंग बट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन के आजू बाजू में रहता है। सो दिस इज दैट क्लोज। सो जब हम कोई मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड घी हम लोग नेजल ड्रॉप्स के नेजल एडमिशन करते हैं, तब वो सीधा ब्रेन में एब्जॉर्ब होता है, और ब्रेन में एब्जॉर्ब होने की वजह से ब्रेन शांत हो जाता है, उसको जो नरिशमेंट चाहिए उधर वो मिल जाता है। इसके साथ साथ कुछ और पंचकर्म में बताए गए हैं जो बॉडी को क्लीन करने के लिए, जो बॉडी के जो कंडक्टर है उसको क्लीन करने के लिए बताए गए हैं। यस, सो दीज आर सम ऑफ दी पार्ट्स जो आयुर्वेदा में बताए गए। इसके साथ साथ बॉडी का तो हो गया, अभी माइंड को तो देखना पड़ेगा ना, माइंड को भी शांत करना पड़ेगा। सो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ हमेशा कि अभी हमारे सामने लैपटॉप्स हैं। तो मेरा लैपटॉप का रैम 8 GB है, आपके लैपटॉप का रैम 16 GB है। तो अगर मैंने मेरे इसमें 50 प्रोग्राम ओपन किए और आपके लैपटॉप में मैंने 50 प्रोग्राम ओपन किए, तो क्या लगता है कौन सा लैपटॉप पहले हैंग होगा? ऑब्वियसली 8 GB वाला। यस। सो ये क्यों हैंग हो रहा है? बिकॉज उधर माइंड का कैपेसिटी जो है उधर जो कम है, कम। इससे अच्छा उसका भी कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, 8 GB का हम लोग 16 GB कर सकते हैं, बट कब? जब वो 50 प्रोग्राम क्लोज हो गए होंगे। सेम गोज विद आवर माइंड। जब हमारा माइंड एक सर्टेन पॉइंट पे जब काम करता है तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। दीज थॉट्स आर नथिंग बट ओपन प्रोग्राम्स। ये ओपन प्रोग्राम्स को हमें क्लोज करना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को ऐसे सो जाते हैं, और फिर जो रात को जो 40 प्रोग्राम ओपन है वैसे के वैसे ही ओपन है, सुबह उठते हैं और अगले दिन वापस कंटिन्यू करते हैं। फिर अगले दिन जो टास्क आते हैं वो प्रोग्राम्स और ओपन हो जाते हैं। और जब ये लंबे समय तक चलता रहता है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं यार मैं थक गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मुझे एंजाइटी हिट कर रही है, मेरा माइंड अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। माइंड अच्छी तरीके से काम कैसे करेगा जब वो ऑलरेडी 100 प्रोग्राम से ओपन है, और उसका माइंड का कैपेसिटी ओनली 30 प्रोग्राम्स, 80 प्रोग्राम्स ओपन है, तो उसको धीरे धीरे करके बंद करना पड़ता है। तो इसमें मेडिटेशन हेल्प करता है, इसमें कुछ माइंड एक्सरसाइजेस है वो हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अरोमा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी वो भी आ गए। सो माइंड के ऊपर भी काम करना पड़ता है। सो इसमें हम लोग नॉर्मली एक चिंतन नाम का एक्सरसाइज रहता है वो देते हैं, मेडिटेशन के बहुत सारे टेक्निक्स है वो बताते हैं, प्राणायाम के बहुत सारे टेक्निक्स है वो बताते हैं। इसलिए जब एंजाइटी के बारे में हम लोग जब ट्रीट करते हैं, या फिर आयुर्वेदा में एंजाइटी के बारे में जब बताया गया है तो उसमें माइंड और बॉडी दोनों को ट्रीट करना पड़ता है। इसके साथ साथ पेशेंट का काउंसलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ ट्रीटमेंट देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। काउंसलिंग इज अ मेजर पोर्शन, बिकॉज वो बार बार वापस एंजाइटी ना आए, एंजाइटी वापस रिलैप्स ना हो, इसके लिए भी पेशेंट का काउंसलिंग करना जरूरी होता है। So, taking a drift from this topic, anxiety में stick करते हुए, is anxiety speaking out normal? मतलब अगर समझो मेरे को anxiety है, तो speaking out मतलब अगर if I have a friend, so should I go confront him and talk to him about my anxiety, what I am feeling, or should I keep it to myself, keeping it to myself? मतलब खुद से बात करो, खुद से ट्रीटमेंट, मतलब खुद से जितना हो रहा है वो ट्राई करना बेटर है कि स्पीकिंग आउट टू समवन कन्फ्रंटिंग इट इज अ बेटर वे? सो ये वही बात हो गई कि हम लोग ने कुकर गैस पे डाल दिया है और उसके ऊपर सीटी नहीं लगाई है, बिकॉज जब तक सीटी है तब तक उसमें से प्रेशर निकलता रहेगा। जब तक और हम लोग ने सीटी निकाल दी तो वो प्रेशर बिल्टअप होगा और एक टाइम पे वो बर्स्ट हो जाएगा। सो स्पीकिंग अबाउट एंजाइटी इज ऑलवेज अ गुड ओपिनियन इन माई, जैसे मैं बोलता हूँ, बिकॉज कब तक आप खुद में दबाते रहोगे। जैसे कि मैंने कहा कि माइंड की भी कैपेसिटी है, अगर वो कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो बट ऑब्वियसली माइंड गर्म होने वाला है, ब्रेन गर्म होने वाला है, गुस्सा आने वाला है। जैसे कि मैंने इसमें पहले भी कहा था कि इररिलेवेंट बात करना, या फिर अनवांटेड एंगर, या फिर शॉर्ट टेम्पर्डनेस, जो मैंने पहले सिम्टम्स में बताया था कि अगर एंजाइटी आप बोलोगे नहीं किसी को, आपकी फीलिंग्स अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो वो आप में दबते रह जाएंगे। अगर वो दबे हुए रह गए तो वो खुद को ही तकलीफ देने वाले हैं, और ये दबे हुए फीलिंग्स बाद में जाके बॉडी को भी तकलीफ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ओवर ईटिंग का, एंजाइटी है,
आप में ही वो दब रहा है और आप उसी एंजाइटी को क्या बोलते हैं ट्रीट करने के लिए आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप स्वीट खा रहे हो, आप ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, क्या होने वाला है, आपकी बॉडी अफेक्ट होने वाली है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से तकलीफ आपको ही होने वाली। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू अ पर्सन whom you are very comfortable with or who is in your inner circle। मतलब आप उसके सामने आप वर्ड्स मिन्स नहीं करोगे, जैसे है वैसे के वैसे बोल दोगे। अगर आप फिल्टर आके बोलने वाले हो तो वो एंजाइटी रिलीव नहीं होगा, बिकॉज एक बार फिल्टर लग गया तो फिर जैसे चाहिए वैसे आप नहीं बोल पाते। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक विद समवन हु हैज whom you are comfortable। So I guess we are done for the day. Kyunki most of the part is covered and actually the things I had in my mind have actually cured it. So thank you for this, doctor. Signing off, Dr. Pushkar Kulkarni and Retracted Dhruv Desai. Asi signing off.